قرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت میں طلباء تنظیموں کا احتجاج طول پکڑ رہا ہے، جو اپنے مطالبات لے کر گزشتہ کئی مہینوں سے گلوب چوک میں احتجاج کر رہی ہیں۔ فیسوں میں بے تحاشا اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرنے پر 10 طلباء قیادت کے خلاف انتقامی کارروائی کی گئی ہے اور انہیں یونیورسٹی سے بے دخل کیا گیا ہے۔ کئی مہینوں سے گلوب چوک میں احتجاج کرنے والے طلباء و طالبات کا کہنا ہے کہ ان کی فیسوں میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اصولوں اور قوانین کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی ہے اور 10% فیسز بڑھانے کے بجائے بے تحاشا اضافہ کر کے غریب خطے کے غریب طلباء پر ظلم کیا گیا ہے۔ طلباء رہنما میر بابر فنڈ ٹائم سے بات کرتے ہوئے یونیورسٹی انتظامیہ کو اڑے ہاتھوں لیا اور اس ناانصافی پر احتجاجی تحریک کو مزید وسعت دینے اور اسے گلگت شہر کے اہم مقامات تک لے جانے کا عندیہ دیا۔ سیمسٹر کی فیسز میں 135% میں نمایاں اضافہ کیا گیا۔ کھلم کھلی یہ ایک HEC کی رول اور کرائٹیریا کی خلاف ورزی کی گئی تو ہم روڈ پہ آئے تھے اور روڈ پہ آنے کے بعد ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ کو ایکسپیل کیا ان لوگوں نے، بغیر پوچھے بغیر ہیئرنگ کے ایکسپیل کیا۔ طلبہ الائنس کی شکل میں KIU ایڈمنسٹریشن کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی یونیورسٹی 20 کروڑ کی ڈیفیسٹ میں گئی ہے، تو کوئی پاسبل ہی نہیں ہے فیسوں میں کمی کرنے کے لیے۔ پھر ہم جب گلوب چوک ہم نے آف کیا تو جو صوبائی گورنمنٹ تھی وہ ہمارے پاس آئے اور حسین شاہ صاحب اور ذبیح اللہ صاحب جو CM کے کوارڈینیٹر ہے وہ آ کے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے معاملات حل نہیں ہوئے تو آپ کا ہاتھ ہمارا گریبان ہوگا۔ ان پہ بھی ہم نے یقین کیا اور VC صاحب کی جب میٹنگ تھی تو ذبیح اللہ اور حسین شاہ صاحب کے سامنے VC نے کہا کہ یہ ہمارے گھر کے معاملات تھے، یہ ہمارے بچے ہیں، گھر کے معاملات گھر پہ سولو ہونے چاہیے نہ کہ روڈ پہ۔ ایک تو گلگت بلتستان جو ہے وہ ایک حساس اور متنازع خطہ ہے، اس میں سبسڈیز ہونی چاہیے، PSDP فنڈ میں شامل ہونی چاہیے۔ ہماری KIU یونیورسٹی آزاد کشمیر میں اتنی یونیورسٹیاں ہیں ان کو سبسڈیز دی جا رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں ایک گندم کی سبسڈی کو باقی رکھا تھا، اس کو بھی ختم کیا۔ اور قراقرم یونیورسٹی جب سے 2002 میں وجود میں ہے تب سے ہم اپنی جیبوں سے فیسیں پڑھ رہے ہیں تو ہمارا اوپر کیا احسان ہے گورنمنٹ کا؟ فیسوں میں کمی نہ آئی تو گلگت بلتستان پورا جیم ہوگا۔ ہم سکول سے لے کے کالج کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان سب کو بحال لیں گے، کیونکہ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں رہا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے جو پرابلم ہم فیس کریں گے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی سب سے جو کم فیس ہے ایک ڈپارٹمنٹ میں 35 سے 40 ہزار ان کی فی ہے، سیمسٹر فیس ہے۔ قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی مڈل کلاس کے اسٹوڈنٹ کے لیے ادھر کوئی گنجائش باقی نہ رہی، تو جب ہم مڈل کلاس کے لیے جہاں گنجائش نہیں ہے تو مڈل کلاس ہم روڈ پہ نکلیں گے، یہاں ہم امیر کو بھی پڑھنے نہیں دیں گے۔ جب کوئی غریب کا بچہ یہاں نہیں پڑھ سکتا ہے تو امیر کا بچہ کیوں پڑھے گا؟ طلباء رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کئی مہینوں سے جاری طلباء احتجاج کو یونیورسٹی انتظامیہ نظر انداز کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ حلقے فرقوں اور گروپوں میں بانٹ کر ان کی تحریک کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو گلوب چوک میں احتجاجی طلباء رہنماؤں کی آراء سے آگاہ کرتے ہیں۔ میرا نام اویس مہدی ہے اور میں آل طلباء الائنس کے فاؤنڈر میں شامل ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 1.5 مہینے سے ہماری جدوجہد جاری رہی ہے اور یہ جدوجہد ایسی نہیں ہے کہ رینڈملی ہم نے روڈ پہ آئے ہیں۔ ہم نے ایک باقاعدہ پلان بنا کر کے یہ ظلم جب تک رہے گا تب تک ہم روڈ پہ ہی رہیں گے، اس حساب سے ہم روڈ پہ آئے ہیں۔ جیسی حیثیت کشمیر کی ایسی حیثیت ہی گلگت بلتستان کی ہے۔ ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے مراد جتنے سہولیات کشمیر میں دیے جاتے ہیں اتنے ہی مراد اور مطالبات کا مطالبہ ہم ادھر گلگت بلتستان میں کرتے رہے۔ جب ہمیں ایکسپیل کیا گیا تو اگلے دن ہم گئے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ ایکسپیل کیوں کیا گیا، تو اسی ٹائم ہمیں گیٹ سے روکا گیا اور گیٹ پہ ہمارے ساتھ لڑائی ہوئی ان کی۔ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اگلا لائحہ عمل آپ لوگوں کا کیا ہے؟ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ابھی تو ہم گلوب چوک پہ اپنا جو ہے انتظامات کر رہے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ پوری گلگت بلتستان جام ہوگی۔ جو ہمارے لوکل الائنس ہے، جو ہمارے ذمہ داران ہیں، ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات آج شام تک حل نہیں ہوتے ہیں تو کل انشاءاللہ پوری گلگت بلتستان جام ہوگی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں تمام طلباء تنظیمیں ساتھ ہیں؟ بالکل، یا چند لوگوں کی یہ الائنس ہے؟ نہیں، بالکل، جیسا کہ اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آل طلباء الائنس، تو اس میں جو جتنے بھی طلباء فیڈریشن سے لوکل جو یونٹس ہے وہ سب اس میں شامل ہے فیڈریشن کی طرف سے۔ اور گلگت بلتستان میں جو کرتے درتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، اسے ہر یونیورسٹی کے اندر پڑتی ہے۔
नहीं, इसको कोई पोलिटिसाइज नहीं कर रहा है। मतलब जो मेन हमारे जो लीड कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स ही है। हम जो भी फैसले करते हैं स्टूडेंट आल तलबा अलायंस में एक फोरम में होता है, जो एक शोरा टाइप की हमने कमेटी बनाई है जिसमें तमाम ज़िम्मेदारान की नुमाइंदगी मौजूद है। फैसले वहीं होते हैं, कोई भी पोलिटिसाइज नहीं कर रहे इसको, इसके फैसले तमाम स्टूडेंट ही कर रहे हैं। मैं हक नवाज बोल रहा हूँ, देमर स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हूँ। यहाँ पे जो स्टूडेंट तलबा अलायंस की तरफ से एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया था, बहुत पहले से तकरीबन 6 महीने गुजर गए। उस एहतजाज और इस स्ट्राइक और इस धरने का मेन जो हमारा मकसद है वो ये है कि हमारे जो एक नुकाती एजेंडा था उसमें पहला एक नुकाती एजेंडा ये था कि फ़ीसों में इजाफा जो हुआ है उसको तरमीम करके ख़त्म किया जाए। 85% करके जो न्यू स्टूडेंट है उनको 105 से भी ऊपर परसेंटेज। यहाँ पर भी एक स्टूडेंट हज़ार रुपए फ़ीस नहीं दे सकता है, उसके लिए यहाँ पे चंदे स्कॉलरशिप के पीछे मर रहा है, तो वो 70 और 80 हज़ार फ़ीस दे के यहाँ नहीं पढ़ सकता। सेक्रेटरी है, DC है, जो भी है वो हमें ऑफिसों में बुलाते हैं, हम ऑफिसों में जाने के हक़ में नहीं है। हम कहते हैं यहाँ पे इस खुले चौक में आके, खुली कचहरी में आके किसी 5-10 तलबा का मुतालबा नहीं है, ये सारे तलबा का मुतालबा है। तो यहाँ चौक में आके क्या करें, उनके मुतालबात हल करें और स्टूडेंट के साथ मिलकर साथ दें। और हमारे वालिदैन से और तमाम फेडरेशन से, तमाम तंजीमों से, कौम परस्तों से ये गुजारिश है कि वो सब हमारे स्टूडेंट के साथ दे दें। आने वाले मुस्तकबिल में यही इंस्टीट्यूट में आपके बच्चों ने, आपकी बेटियों ने, आपके बेटों ने पढ़ना है, तो इसके लिए हमारी अपील है कि सब हमारे साथ भरपूर साथ दे दें और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम अपने इस मिशन में कामयाब होंगे। ये एक यतीम यूनिवर्सिटी भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें सालाना 2021 में ये 35% बढ़ाई गई फीस। उसके ऊपर कुछ स्टूडेंट इस तरह रोड पे आ गए तो उनको दबाया गया, उनको यहाँ से एक्सपेल करने की धमकी दी गई, कुछ स्टूडेंट को एक्सपेल भी किया गया, तो वो तहरीक ख़त्म हो गई। और वहाँ से जब 2019 के स्ट्रक्चर से 2023 के स्ट्रक्चर का हम देखेंगे तो 135% फीस इन्होंने बढ़ाया है, जबकि 2019 से 2023 तक सिर्फ 40% फी बढ़ानी होती है। तो हमारी जो यहाँ पे जदोजहद है वो उसके ख़िलाफ़ है कि जो गलत पॉलिसीज़ आप लोगों ने किया है उसको ख़त्म करके AGC के मुताबिक जितना फ़ीस बढ़ रहा है उस फीस को आप इम्प्लीमेंट करें। बाकी जितने भी गैर कानूनी फ़ीस आपने बढ़ाया है उसको ख़त्म करें। तो में हमारे असातिज़ा कराम प्रोटेस्ट पे आ गए तो यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके यूनिवर्सिटी बंद की गई, हमारी क्लासेस रोक के, हमारे OSTs और हमारे पेपर्स रोक के उनका जो प्रोटेस्ट था उसको सुना गया। लेकिन जब हम लोग यहाँ अपने हक़ के लिए प्रोटेस्ट पे आते हैं तो हमें फ़िरक़ों में बांटा जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, फिर ऊपर से हमें एक्सपेल किया जाता है। अभी हमारे कोई 10 तलबा इस तरह है जिनमें हमारे ख़वातीन भी शामिल है, उनको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल किया गया है, उनके स्कॉलरशिप्स रोके गए हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि क्या हम अपने हक़ के लिए बात नहीं कर सकते? हम अपने असातिज़ा कराम को ये फ़र्क कहते हैं कि आप हमारे रूहानी वालिदीन हैं, आप आ जाए, आप यहाँ पे आके हमारे मुतालबात सुने। अगर वो गैर कानूनी है, अगर वो लॉ के अगेंस्ट है तो आप हमारे वालिदीन हैं, आप हमें थप्पड़ मार के हमें क्लास में ले जाके आप बता सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें सब उनको भी पता है, लेकिन वो अपने ऑफिस में बैठ के तमाशा देख रहे हैं। यहाँ कई दिनों से हम लोग रात को भी इस चौक में बैठ कर अपनी मदद आप कहते हैं यहाँ पे बैठते हैं, हमारा एक रूहानी बाप वहाँ से हमें पूछने नहीं आ रहा है। मेरा नाम राहिल हुसैन है और मैं आल तलबा अलायंस का मेंबर हूँ और मैं वाइसो को रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहले आप इधर देख रहे हैं कि हम कई दिनों से, 1 महीने से तकरीबन यहाँ पे सरापा एहतजाज है। न हो जीप गवर्नमेंट की तरफ से कोई हम पे वो मुतालबात के लिए कोई बंदे आए हैं, न वफाक की जानिब से कोई आए हैं। हमें इंतज़ामिया की तरफ से सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, न हमारे मुतालबात मान रहे हैं। हमारे स्टूडेंट को मुअत्तल किया गया है, यहाँ पे जुल्म ही जुल्म है। हम अगर अपने हक़ की बात करते हो तो इधर आके कहते हैं कि फ़लान है, एंटी पाकिस्तानी कहते हैं, फ़लान यस्तान कहते। मैं अपील करना चाहूँगा वज़ीर आला गवर्नर GB से कि हमारे चंद 5 मुतालबात जायज़ मुतालबात हैं, उनको अपने सीनेट में इजलास बुला के उन पर काम किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। और सबसे पहली बात जो है, यूनिवर्सिटी से हमें निकाला गया है। क्यों निकाला है ये भी हमें नहीं पता। जब अंदर हमें बुलाया गया, हमसे कहा गया कि आप लोगों ने जुर्म किया है, क्योंकि अपने हक़ के ऊपर आवाज़ दबाना इनको जुर्म लगता है। ये लोग जो है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग सही कर रहे हैं। एक तालीमी इदारे को चलाने के लिए एक अच्छे बंदे को, एक अच्छे ज़िम्मेदार को बिठाना चाहिए। इस VC का जो ज़िम्मेदार है यूनिवर्सिटी का, इस टाइम ये है ही नहीं यूनिवर्सिटी में, ये है डाउन साइड पे। कभी भी हमने उसकी चेहरा भी तक नहीं देखा है, तकरीबन 1.5 साल हुआ हमने देखा ही नहीं है वो है कैसा। तो रही बात हमारे मुतालिबात जितने भी है, तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी तक कोई सुन ही नहीं रहा है। सबसे पहली बात मैं कहूँ, चलो VC नहीं है तो मीर ताज़ीम तो यहाँ पे है, उसको आना चाहिए हमारे सामने, वो भी नहीं आ रहा।
और शायद उसने कोई वीडियो देखा होगा, वो कह रहा है कि 150 तलबा बाहर इस तरह के शोर मचा रहे। उससे यही गुजारिश है कि बाहर आके देखें, हमारे मुतालिबात को सुने। अगर उसके बच्चे हैं हम तो हमें देखें। ये दुनिया मकाफात अमल है, आज हम रोड पे हैं तो कल वो लोग भी यहाँ रोड पे आ जाएंगे। ये मत सोचे कि वो लोग बच जाएंगे, दुनिया मकाफात अमल है, अल्लाह देख रहा है सारी चीज़ें। जितने गरीबों को दर पदर टोकरे खिलवा रहे हैं ना ये लोग, अल्लाह देखेगा इनको। बाकी हमारे जो भी मुतालिबात हैं इंशाल्लाह हमें अपने अल्लाह पे भरोसा है, पूरे हो जाएंगे और हम करके दिखाएंगे, अपना हक छीन के दिखाएंगे इनसे। काराकोरम यूनिवर्सिटी की इब्तिदा भी ऐसे एहतजाज और धरनों से हुई थी जब 2003 को अचानक डिग्री कॉलेज की इमारत और अराजी पर काबिज होकर यूनिवर्सिटी बनाई गई। उस वक्त डिग्री कॉलेज के असातिज़ा और तुलबा गिलगित के अवलीन और तारीखी डिग्री कॉलेज पर कब्जे के खिलाफ सरापा एहतजाज हुए थे। कई महीनों एहतजाज के बाद बिला आखिर यूनिवर्सिटी बनाई गई, जबकि डिग्री कॉलेज को मोहम्मद आबाद दनियोर के एक पोल्ट्री फार्म में शिफ्ट किया गया और तुलबा को भी तकसीम दर तकसीम का हरबा आजमा कर जुटियाल में एक सरकारी इमारत में कॉलेज शुरू किया गया। तुलबा एहतजाज के बायस गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद बराए नाम बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी वीराने का मंजर पेश कर रही है। तुलबा को एहतजाजों में मसरूफ़ रख कर यूनिवर्सिटी के इंतज़ामी उमूर को भी गैर पेशावर लोगों के सुपुर्द करने की राहें हमवार की जा रही है, जबकि तुलबा भी यूनिवर्सिटी के मुस्तक़बिल से आशना एहतजाज में मसरूफ़ है। वक्त का तकाजा है कि गिलगित बल्तिस्तान सरकार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने और ख़ित्ते के साथ मुखलिस होने का सबूत देकर तुलबा व तालिबात के साथ संजीदा होकर मामलात तय करे। तुलबा तंजीमों को भी संजीदगी का मुजाहरा करना होगा और अपने क़ीमती वक्त के पेश नज़र बेहतर फ़ैसला करने की ज़रूरत है। फ़िदाल शाह ग़ज़री, फंडा टाइम्स, गिलगित।